Hello children. Now when I was explaining structure of heart, I also want to explain you one very important portion about coronary arteries. Now heart को भी तो ऑक्सीजन चाहिए. हार्ट को ये ऑक्सीजन कौन सप्लाई करेगा? ठीक है. So there are arteries which supply the blood and hence oxygen to the heart muscles. Okay. So these arteries are called coronary arteries. ये पिक्चर में नहीं दिखाया है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. Now these arise from the base of the aorta. aorta के बेस से कुछ arteries arise होती हैं और वो दोनों राइट और लेफ्ट हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कोरोनरी वेन्स से ले लिया जाता है. So this forms a special circulatory system of the heart. Okay. Similarly, coronary veins are the veins which collect deoxygenated blood from the heart walls and pour it into the right auricle. ठीक है. इसके अलावा मैं कुछ और भी डिस्कस करना चाहती हूँ और वो है diseases of the heart. Two very important disease in your syllabus is myocardial infarction. Please refer to page 17 of my notes. You will get it there. Myocardial infarction, it is a heart disease due to the blockage of this coronary arteries. Now, क्या होता है कि कभी कभी कोरोनरी आर्टरी में भी ब्लड क्लॉट हो जाता है. उसको कहते हैं थ्रोम्बस. Okay, or thrombosis. Okay, so that is coronary thrombosis. Okay, so myocardial infarction is also known as coronary thrombosis, a clot in the coronary arteries. तो इसके वजह से क्या होता है, हार्ट मसल्स जो है उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ द हार्ट में डेड हो जाते हैं. सो इट इज़ अ डेडनिंग ऑफ द हार्ट मसल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया. Okay, so myocardial infarction, this is one of the heart disease and it is also known as coronary thrombosis or heart attack. In most popular language it is also called heart attack. Now there is another disease that is angina pectoris. Angina pectoris is a chest pain. It is a chest pain due to insufficient supply of blood to the heart muscles. जब ब्लड को जब हार्ट को सफिशिएंट ब्लड नहीं मिलता तो हार्ट में पेन होने लगता है, चेस्ट में पेन होने लगता है. दैट पेन इन द चेस्ट is called angina pectoris and it is due to insufficient supply of blood to the heart muscles. ठीक है. इसके अलावा एक और बात मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि हमारा जो हार्ट है, ठीक है, उसके राइट ऑरिकल में ओके SA नोड दैट इज पेस मेकर और SAN और साइनो एट्रियल नोड पाया जाता है. इट इज इन द अपर पोस्टीरियर वॉल ऑफ द राइट ऑरिकल. कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको SA नोड. ठीक है. इट इज़ अ स्मॉल बैंड ऑफ मसल्स. कुछ नहीं है, उसको पेस मेकर भी कहते हैं, पेस मेकर. सो इट इज़ कहा जाता है इट इज़ नियर द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना कावा. ओके. नाउ वो क्या करता है, वो इम्पल्स जनरेट करता है. इट जनरेट्स एन इम्पल्स and this impulse causes the auricles to contract. ये contraction, diastole, asystole ये क्यों होता है? ये कोई तो उसको ट्रिगर करता होगा ना. So there is an impulse. You can say there is a point here at the base of superior vena cava. That point is called SA node or sinoatrial node or pacemaker. Now that generates an impulse and that impulse causes both the auricle to contract. And the impulse, you know, it spreads in all directions. It spreads in all directions. And you know,
from the SA node there is a band of muscles. Again, you can tell a small band of muscles that arises from the SA node. Just a second. Yes, that is called pace setter. Pace setter, also called AV node or AVN or atrioventricular node, and it is in the lower side of the right auricle. Pace setter. तो ऊपर में क्या अपर वॉल्स ऑफ द ऑरिकल में क्या है? पेस मेकर, और लोअर वॉल्स में क्या है? पेस सेटर. नाउ इट इज नियर योर इंटर ऑरिकुलर सेप्टम. ये रहा ना इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ये पूरा ना ऑरिकल के यहाँ तक पूरा कंटिन्यू हो रहा है ना, तो समवेयर हियर इट विल बी, समवेयर हियर द पेस सेटर. ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका ऐसे नोड, और यहाँ पे एकदम इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के एकदम, और ये लोअर पार्ट ऑफ द ऑरिकल में यहाँ पे आपको मिलेगा पेस सेटर नियर द ट्राइकस्पिड वाल्व. यू सी, नियर द ट्राइकस्पिड वाल्व. सो वो क्या करता है? इट स्ट्रेंथन्स द सिग्नल जनरेटेड बाय एसए नोड. एसए नोड अभी इम्पल्स भेजा, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किए, लेकिन उसे तो पूरा यहाँ तक पहुँचना है ना उस इम्पल को. तो पेस सेटर जो है, या फिर एवी नोड कह सकते हो आप, ये जो नोड है ये उस सिग्नल को और बढ़ा देगा. एंड इट एवी नोड का अब जो स्ट्रेंथनिंग ऑफ द सिग्नल से क्या होगा कि एक इम्पल्स क्रिएट होगा जो कि वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने पे मजबूर करेगा. सो एवी नोड का इम्पल्स कॉजेज वेंट्रिकल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एसए नोड का इम्पल्स कॉजेज ऑरिकल्स टू कॉन्ट्रैक्ट. ओके, अब इसके अलावा कुछ फाइबर्स बिगिन्स फ्रॉम द एवी नोड and extends to the interventricular septum. That is called bundle of His. Bundle of His. His आप H capital, I capital, S capital लिखना. ठीक है, तो वो क्या करता है? वो एक ब्रांच ऑफ फाइबर्स ले जाता है पूरा यहाँ से पूरा यहाँ और यहाँ से पूरा यहाँ. ठीक है, those are called Purkinje fibers running along the ventricle walls. Okay, now that create an impulse and conducts it to every part of the heart. So SC node का impulse से auricles contract, AV node का impulse से ventricles contract, but bundle of His contains Purkinje fibers with which entire heart muscles will contract and relax. Okay, so this was very important part. कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारा पेस मेकर है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है ये फेल हो जाता है. Then in that case we have to put, and doctors have to put, this is so natural in our body na, so sometimes what happens, it fails to work properly, so the doctors replace it with an artificial pacemaker. Artificial pacemaker is a man-made pacemaker fixed into the heart of a person whose pacemaker becomes faulty, causing heart trouble. Okay. अच्छा, यहाँ पे एक रीजनिंग क्वेश्चन आता है कि आपका जो वॉल्स है, there is a very important part about the heart walls. Okay, now ventricles are thicker walled than the auricles. Why? देखो, ऑरिकल्स को तो ब्लड वेंट्रिकल्स में बस इतना सा ही डिस्टेंस में पोर करना है, लेकिन वेंट्रिकल्स को जो है ब्लड पूरा बॉडी में पोर करना है, इसीलिए वेंट्रिकल्स का जो वॉल्स है वो थिक होता है. ठीक है, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज इवन मोर थिकर. लेफ्ट वेंट्रिकल का
जो वॉल्स है दैट इज इवन मोर थिकर देन द राइट वेंट्रिकल. व्हाई? बिकॉज राइट वेंट्रिकल is just pouring it into the lungs which is nearby for purification, but left ventricle is pouring it to all body parts. बहुत दूर भेजना है उसको, ऊपर भी, ऊपर बॉडी पार्ट्स में भी और नीचे के बॉडी पार्ट्स में भी, ठीक है ना. तो इसीलिए उसका वॉल्स थोड़ा और थिकर होता है, उसको दूर दूर तक ब्लड को भेजना है, ठीक है. इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन था. इसके अलावा मैं लोकेशन ऑफ द हार्ट के बारे में बताना चाहूँगी कि हार्ट इज प्लेस्ड राइट इन द सेंटर. बहुत लोगों का ऐसा थिंकिंग है कि हार्ट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, बट नो, इट इज फेल्ट सो बिकॉज 2/3 ऑफ इट्स मास इज टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन. 2/3 ऑफ इट्स मास, ठीक है. अगर इसको 3 हिस्से में डिवाइड कर दो तो 2/3 जो पार्ट है वो पूरा लेफ्ट साइड में. इसलिए हम लोग को लगता है कि हार्ट लेफ्ट साइड है, बट नहीं. हार्ट इज एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ योर thoracic cavity between the two lungs and above the diaphragm. Okay. Now, during working, contraction of the heart is more powerful at the pointed left side. ये जो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इस पॉइंट में और लेफ्ट साइड में, इस साइड में कॉन्ट्रैक्शन हमें बहुत हेवी फील होता है, इसलिए हमें लगता है कि हार्ट लेफ्ट साइड में है. सो इन 2 वजह से, एक तो दिस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विच इज़ वेरी पावरफुल ऑन द लेफ्ट साइड, इससे लगता है कि हार्ट लेफ्ट साइड में है, और दूसरा 2/3 उसका जो मास है वो लेफ्ट साइड में, इससे लगता है कि हार्ट लेफ्ट साइड में, लेकिन नहीं है ऐसा. हार्ट इज एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द बॉडी, thoracic cavity. एंड इट साइज, यू नो, अपने आप एक मुट्ठी बनाओ ना ऑफ क्लोज्ड फिस्ट. इट इज़ द साइज ऑफ योर क्लोज्ड फिस्ट, एक मुट्ठी की तरह. एडल्ट्स में लेंथ ऐसे कर लो, वो लेंथ 12 सेंटीमीटर और ब्रेड 9 सेंटीमीटर, ठीक है. पूरा ट्रायंगल शेप का ही है एंड एकदम ब्लंट कोन की तरह लगता है, ठीक है. सो दिस इज़ अ मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर हार्ट. और हमारे जो हार्ट हैं दैट इज़ मायोजेनिक, मतलब इसमें जो स्टिम्युलस मिलता है जो उसको ड्राइव करता है, दैट इज ओरिजिनेट्स इन द मसल इटसेल्फ. द स्टिम्युलस ओरिजिनेट्स इन द मसल. इसलिए वी हैव ह्यूमन हार्ट इज सेड टू बी मायोजेनिक हार्ट. लेकिन इन वर्टिब्रेट्स में अगर आप देखो तो उनका जो हार्ट है ना वो न्यूरोजेनिक है, मतलब दे बीट ओनली व्हेन कनेक्टेड टू एक्सटर्नल नर्व्स, ठीक है. तो उनका जो हार्ट है वो नर्व्स से फंक्शन करता है, हमारा जो हार्ट है वो मसल से फंक्शन करता है, इसीलिए हमारा हार्ट मायोजेनिक है. सो चिल्ड्रन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रिवाइज इट अगेन एंड अगेन. प्रैक्टिस दिस डायग्राम and the labeling very important, and I have put various flowcharts and some questions which are very important in my notes. Please go through that.